है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना मेरा ये जमाना तेरा ना, मेरा ये जमाना। Namaskar. I'm happy to be here today in Guwahati amongst all of you at this beautiful campus. Subject today is the aggressive behavior progressive or not progressive? We have some AV. तेजी से दौड़ती भागती हमारी जिंदगी में धैर्य की कमी दिखती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना आजकल लोगों का स्वभाव बन गया है। आक्रामक व्यवहार हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है और यही आक्रामकता हमारे विकास में रुकावट बन जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपना समय समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय प्रतिक्रिया देने में बर्बाद कर देते हैं। कम समय में अलग अलग काम पर फोकस करना और लगातार नकारात्मक सोच का हावी होना भी आक्रामकता का एक बड़ा कारण है। ऐसे व्यक्तित्व का मिजाज भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर भी आंका जाता है। आज हम यही समझेंगे कि गुस्से पर अगर सही समय पर काबू न किया जाए तो कैसे ये हमारे विकास में बड़ी रुकावट बन सकता है। What would you say, students? Is aggressive behavior good or not good? What do you understand from aggression? Aggressive means what? According to me, aggression is a behavior which we saw as a sign of dissatisfaction. For me, there can be positive aggression and negative aggression. For me, aggression is an attitude. We look more negative into it. बट एग्रेशन जिसे हम आक्रामकता कहते हैं, अगर हम अपने कार्यशैली में अगर आक्रामकता नहीं होती है, वी कैन नॉट अचीव दैट हाइट. सो दैट वे आई फील एग्रेशन इज नीडेड इन आवर ह्यूमन लाइफ. दैट्स वेरी गुड. आई थिंक इन डे टू डे वर्किंग जब हम करते हैं, एग्रेशन को हम लोग अलग अलग रूप से समझ जाते हैं. अब इफ योर आर्मी इज नॉट एग्रेसिव, हाउ विल दे विन? If your cricket player is not aggressive on the field, how will they win? So, I would say, in today's context, whether aggression is negative for progress or it is positive, I take it, you have to be combative. उसको कई लोग aggression का नाम दे देते हैं. Aggression means, as you said, आक्रामकता. You are all the time in the fighting mode, which may or may not be good. So, being combative is another form of aggression. लेकिन कई बार being doggedness, जिद्दीपन, उसको भी we take some time being aggressive. दोनों ही अपनी जगह पे results sometime being dogged, being totally determined or being जिद्दी के मुझे तो ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरे साथ जो भी हो, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ, यारा मैंने तो हाँ कर ली. गाना सुना है कि नहीं? So doggedness is also another form of being aggressive. और दूसरी ये doggedness होने में आपको गुस्सा भी कभी कभी आएगा. गुस्सा आएगा तो then you will lose control. So, do you agree with this explanation so far? देखिए, to explain you a little bit, आप आजकल जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ. इंजीनियरिंग में आप कहते हैं you need more combustion in the engine power. या combustion engine भी होते हैं. एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगते हैं कि वो इंजन कितना जल्दी फुल पावर पे पहुंच सके, उसको कंबशन कहते हैं. उस टेक्निक को यूज़ करते हैं. तो क्या कहेंगे, कम्बैटिव होना अच्छा है कि नहीं?
So it's good to be combative in business because it's better for the society and also for the entrepreneur. So I feel aggression to some extent is good because I, as a law student, if I'm not aggressive to bring up my point in the court, I don't think so I will be able to, make a deal in the court. So at some extent, we should be aggressive. But to other extent, I feel the aggressiveness should not reach to an extent where we harm somebody. Good answer. So hi. Very good. I think for me, aggression is something that you can control, and not that's something that it controls you, because like you said, if it's a combustible engine, it needs to reach a combustion point where it is able to take off at a very fast rate. Similarly, sir, हमारी lives में भी it should be controlled in a manner जहाँ हमें पता है कि हमें aggressive होना ज़रूरी है in this situation, और वो situation को analyze करके तब हम वो step ले सके, क्योंकि aggression, be it positive, be it negative, it leads to a result, and that result should matter more. So very good. That result will define. लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जुझारूपन जो है, being combative, जुझारूपन में जहाँ एक तरफ हार मानना, उसको हम ना कहते हैं. जुझारूपन में हार मानना लिखा नहीं है डिक्शनरी में, और साथ में कभी फेल्योर सामने आता है, उसको लेकर हताश नहीं होना, वो भी मना है. अगर आप जुझारू होते हुए आप जब कभी कभी सक्सेस फिर भी नहीं मिलती है, तो उसके एट दैट टाइम यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एंड डिसइल्यूजन, और हताश होकर बैठना नहीं है. लेकिन उसके अलावा क्या करना चाहिए उस स्थिति में, ये प्रयास करें कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ माय फेलियर, व्हाट आर द रीजन आई हैव नॉट सक्सीडेड, एनालाइज देम, एनालाइज करके with wholehearted new effort, go back again with the new zeal to solve that problem till you achieve the success. This is what is combativeness, and I think if you know it as aggression, I would say aggression is good for progress. हमारे बीच में हैं आज संगीता गोस्वामी. She is a counseling psychologist, and she deals with the subject of aggression and combativeness and depressions and so many things. And ये संगीता जी गोस्वामी, she is counseling psychologist, president of Mind India Institute of Positive Mental Health and Research, Guwahati. And उन्होंने अपना एक क्लिनिक 1996 में खोला, और she has gone one step ahead. She is not only counseling as a psychology, but she's looking at creating positive mindset instead of being negative. So let's welcome Dr. Sangeeta Goswami. आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, what would you say about this subject? As a counseling psychologist, मेरा काम क्या है? I have to teach you to fish rather than giving you a fish every day. Yeah? Very good. So, I look at more on the self, because as a self, I think we bring a community together. और वो community हम लोग का बनाने के लिए हम लोग के हाथ में ही है. तो गुस्सेपन तो हम लोग को सबके होते हैं, किसका गुस्सा नहीं होता है. So, you tell me, anybody else who doesn't get angry? No, we all get angry. We all get angry at some stage or the other. But today we'll discuss how not to get angry. गुस्सा तो सबको आता है, मेरे को भी आता है. जब घर में कोई ऐसी बात, कोई भी घर का सदस्य कुछ बोल देता है तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उस टाइम चुप रह जाता हूँ और एक गिलास ठंडा पानी पीता हूँ और थोड़ी देर में शांत हो जाता हूँ. अच्छा, वेरी गुड. एग्रेशन और गुस्सा मेरी समझ में दो अलग चीज़ है. जो आपने बोला, आई एग्री विथ यू, एंगर एंड एग्रेशन. मेरे हिसाब से ये है कि एंगर एक इमोशन है, जैसे कि दुख आपका एक इमोशन है, खुशी आपका एक इमोशन है. एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन. एग्रेशन इज द बिहेवियर. That it's a behavior, and we today agreed that we are two forms of being aggressive: combative or doggedness. Yeah. So combative होना, उसमें गुस्से का जगह नहीं है. Yes, sir. When we are dogged, when we are
जिद्दी हैं तो उस वक्त गुस्सा आएगा. That may be a form of aggression. मैं 20 साल से बच्चों का स्कूल चला रही हूँ. ज़्यादातर मन शांत होता है, हैप्पी रहता है, लेकिन कई बार जब बच्चे मानते नहीं हैं या आसपास के लोग भी जब मानते नहीं हैं बात प्यार से, तो कई बार एक्टिंग करना ज़रूरी होता है, एंगर काम करवाने के लिए. वो मैं कई बार करती हूँ. तो इज इट राइट? You know, it's a controlled anger. You want to act as if you are angry. Right, I do that. So that's not bad. Okay, thank you. But as long as you know it, because when we get angry, we lose total control on ourselves. Yes. No matter what situation you may be. Right. Anger is, if the first result of that is you lose control on yourself. Yes. And you harm yourself. Right. Yes. So ma'am, ये बताइए, what kind of difficulties are you facing when you are in this profession? How people are, when you are counseling them, when you are talking to them, sometimes I've also experienced कि वो लोग भाग आप उसको समझा रहे हैं, 1 घंटा डिस्कशन किया ऐसा शो में या 1-to-1 में भी, उसके वो क्या उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि सारा रात रामायण पढ़ा लेकिन सुबह उठ के बोलते कि रावण का सीता कौन था और राम का सीता कौन था. हाँ जी. So how do you tackle such situation? सी आजकल वो मेजर चैलेंज जो फेस कर रही हूँ कि काउंसलिंग में पहले वो बोलते हैं कि वो पागल लोग ही आते हैं काउंसलिंग में ना, विच इज़ सच ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मगर काउंसलिंग आप देखते हैं तो आपका भारत में आपका गीता का जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, वो काउंसलिंग ही है. क्योंकि आपको आप देखते हैं कि अर्जुन के लिए भी कृष्णा आपको वो नहीं बोलते कि ये करो, मगर वो उसको सोचने के लिए मजबूर करते हैं. सो वी फैसिलिटेट. बट द चैलेंज व्हाट हैपेंस इज दैट आजकल सबको सर क्विक फिक्स चाहिए. Everybody wants a very quick fix. Everybody wants immediate action. क्विक रिजल्ट चाहिए. तो क्या होता है इसके दौरान में आप खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करने के आप समय नहीं देते हैं इतना ना. Yeah, because these kind of things, these are behaviors. And behavior patterns happen over a period of time. Yeah. Because if you start smoking a cigarette and you smoke maybe 3 cigarettes a day, sometime I ask some youth, okay, do you smoke? Yes, sir. Only 3 cigarettes, sir. But 3 cigarettes every day when you take, with after lunch and after dinner and in between with the tea or something, then it becomes a habit pattern. You cannot change that. बिल्कुल. So behavior also develops over a period of time, slowly. Then you don't even know that you are making a mistake. It becomes part and parcel of your behavior. हाँ जी. तो मैं आपसे पूछने के I would like to ask you कि आपने बोला कि गुस्सा आते हैं, वो हम लोग ने मान लिया, मगर क्यों आते हैं? Why does it come? No? I think would anybody like to tell me why does it come basically? एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है जब हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी मेक टारगेट्स बियॉन्ड आवर लिमिट एट टाइम्स, एंड जब वो हम नहीं कर पाते हैं, दैट इज व्हेन द फ्रस्ट्रेशन कम्स दैट लीड्स अस टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. ये आपका इतना भी साधारण भी हो सकता है कि आप दुकानदार से कुछ बात कर रहे हैं और वो आपसे उत्तर नहीं दे रहे हैं ठीक से, यू नो. सो दैट इज ऑल्सो अ मिनिमल एक्सपेक्टेशन. तो हम लोग का क्या होता है, एंगर हम लोग जब होते हैं तब हम लोग का एक थ्रेट परसेप्शन होता है, द वी फील थ्रेटेंड. तो क्या होता है, ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है वहाँ पे कि एज सून एज वी फील थ्रेटेंड आवर बेसिक इंस्टिंक्ट्स टेक ऑफ. So what happens when our basic instincts take off? तो हम लोग को 2 ही चीज़ हम लोग करते हैं. तो एक सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को भागना चाहिए कि लड़ना चाहिए. Yes. हाँ जी. So फ्लाइट और फाइट एक्शन होता है. तो वो बेसिक इंस्टिंक्ट होने का कारण वजह क्या होता है कि ऑक्सीजन में जितना आपका वो ब्लड ब्रेन में आपका जितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो कम होकर आपके हाथ पैर में चले जाते हैं. बिकॉज यू नीड टू बी रेडी फॉर action. Combativeness. Right? So that is why in lot of, people who talk about anger and you're saying what you need to do when you're angry is to take a deep breath. Why you're taking a deep breath? Because you're supplying more oxygen to the brain. Yeah. Right? So you are preparing yourself. So we all know that, but what do we do about it?
हम लोग क्या कर सकते हैं? सर ने बोला कि पानी पी लिया, ठीक है. एक ने बोला कि दबा लिया. माय क्वेश्चन इज दबा लिया तो कहीं तो फटेगा ना. Yes. तो क्या करना चाहिए इज दैट एंगर टू बी यूज कंस्ट्रक्टिवली. सो आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग टू मी. एक चैलेंज जो है, मेक इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी. ना, थिंक दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न. जैसे सर ने बोला कि एक फेलियर आ गया, तो फेलियर ऑल्सो कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर. तो टू थिंग्स विच आई थिंक इज वेरी हेल्पफुल. एक हो गया आपका लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग. सो लाइफ स्किल्स जो आपको बोलते हैं साइको सोशल स्किल्स, जीवन कौशल बोलते हैं, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न लाइफ स्किल्स. The second thing is that wellness clinic in each school, colleges and university. ये जो wellness clinic है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के भी लिए होना चाहिए, पेरेंट्स के भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी होना चाहिए. So and the last thing is that you need to have a constructive hobby. No? तो हम लोग बोलते हैं जब हॉबी होना चाहिए तो हाँ, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग अ बुक, वो सब पैसिव. These are passive hobbies. Please have a hobby which is very active, which will alert your brain and make you think of the consequences. Very good. संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप यहाँ इस शो पे आए और इतना अच्छा हमारे लोगों से एड्रेस किया. Thank you so much. Anything you want to say to the viewer who are sitting at home, especially the women? आप झिझकने नहीं, do not hesitate. Please take help. We all need help, and help का मतलब ये है कि we want to have personal growth. जितना सके आप आपको explore कीजिए, आपका positive points देखिए और आगे चलिए. Thank you. Thank you very much, संगीता जी. Thank you so much. देखिए, we all know, हमको सबको पता है कि हमें combative होना अपने एक्शन में, जैसे हमको पता है कि जिस वक्त हमको एक्ट करना है उस वक्त बड़ा एग्रेशन से करना चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए. और लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा जो ज़िद्दीपन है, डॉगेडनेस है, वो बीच में आ जाता है. और वो बीच में जहाँ आया और दोनों का मिलन हुआ कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने बायोलॉजिकली बताया, इवन साइकोलॉजिकली, when these things come, we kind of create some kind of the or the other विकार जिसको कहते हैं ना, वो हमारे मन में पैदा हो जाता है. और वो विकार जैसे पैदा हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन गुस्से के रूप में सामने आता है. उसको कैसे रोकना चाहिए, कैसे रोकें उसको? हमको पता होते हुए भी हमको गुस्सा आता है. तो इसको रोकने के लिए again we will have to change our behavior pattern. There is no other reason, other way. So you will have to work on yourself to change your behavior pattern. That's the only way, and that can come slowly with either you can go into spiritualism. Spiritualism is not necessarily कि सारा दिन आप भजन गाते रहें और वो करते रहें. अपने साथ अपने आप को पहचानना. This is what I always say, that you just start understanding your own self by looking at inside yourself, because everything is our inside this. ये कहते हैं ना, 5 हाथ की काया में सब कुछ है. उसके अंदर से अगर देखना शुरू करेंगे हम अपने अंदर, तो हमें पता लगेगा in what situation how do we behave. And then slowly you have to work on yourself. Then only you can change yourself. क्योंकि when you get angry or when you get, जब आपको निराशा होती है, when you are combative, you want to take good action, you don't get desired results, at that time you get disappointment, निराशा होती है. निराशा से आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी जहाँ पे आ गई वहाँ पे फिर संसार की दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको होने लगती है, बिकॉज द नेगेटिव माइंड कैन नेवर बी सक्सेसफुल. नेगेटिविटी में कभी भी सक्सेसफुल होने का कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? आपने कभी देखा हो किसी को, आदमी को, स्टूडेंट को, अपने साथी को बीइंग नेगेटिव? डू यू आइडेंटिफाई सम नेगेटिव पीपल? What do you see in them?
We see negativity in a way. If a person is thinking that he can't do anything, he's not able to achieve the goal, he's very laid back, he always procrastinates the thing, and he thinks he's not worthy enough to achieve the about goal. himself itself. Yeah, So a negative person is पहले तो अपने आप से ही नेगेटिव है, अपने आप के बारे में ही सोचता है कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ. ये आपने कहा ना? Yeah, they underestimate themselves and they don't see opportunity as opportunity. They think opportunity as a threat. Very good, very good. नेगेटिव पर्सन ज़्यादातर आंसर्स नो में देता है, और जो पॉजिटिव होता है येस देखते हैं, एटलीस्ट इतना तो कहेंगे जो पॉजिटिव होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं सीधा नो से शुरू होता है कोई भी काम. नो से शुरुआत होती है. I feel that a negative person is one who has low self-esteem, is actually insecure about oneself. So thus gets negative about Insecurity also breeds negativity. Very good point. नेगेटिव लोग वो भी है जो खुद तो डिमोटिवेटेड है, बट अपने आसपास के लोगों को भी डिमोटिवेटेड कर देते कुछ करने से. तो सर वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एक नेगेटिव इंसान का, अगर आप उसके साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी वैसे बनते जाते हो धीरे धीरे. Yes, yeah, you should. This is very good thing. Very good learning out of what he has said. जहाँ तक हो सके अपनी कंपनी, अपनी दोस्ती, अपना सर्कल पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए. नेगेटिव लोगों के साथ रहना भी खतरनाक है. जितने अच्छे लोगों के साथ रखेंगे. अच्छा, कई बार हम लोगों में क्या होता है, जब हम मान लीजिए किसी प्रोफेशन में है, जैसे लाइक इफ आई एम रनिंग ए कंपनी, आई एम रनिंग ए बिजनेस, तो नॉर्मली इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अस ह्यूमन बीइंग दैट वी वांट टू से यार ये आदमी कमज़ोर है, इसको थोड़ा वी हैव टू टीच हिम हाउ टू कम अप, एंड वी put our energy behind the people, those who are weak, and we ignore the people, those who are very, very good, excellent. So I believe in breaking rules. So मैं ये कहता हूँ कि always look at the people, those who are doing excellent work. Be in their company. Look at them. How do they excel? How do they achieve what they have achieved? And then only you can be more progressive in life. बिकॉज उससे आप ज़्यादा सीखेंगे बजाय इसके कि किसी वीक आदमी की कमज़ोरी दूर करने के. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा. एक उदाहरण मैं छोटे से रूप से देता हूँ कि देयर वर टू नेबर्स, एक नीचे रहता था, एक ऊपर रहता था. अब ऊपर वाले का आदमी का जो गंदे पानी का नाला उसके चौपाल में या उसके चौक में गिरता था. मोहल्ले के लोग बैठे, वेलफेयर सोसाइटी के कुछ 5 लोग बैठे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए बैठे. तो उन्होंने सब ने कहा कि नहीं, तुमको ये पतनाला बाहर गिराना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट. तो इसे यस सर. वो कहते हैं पंचों का कहना सर माथे पर, पतनाला तो गिरेगा यही. सो दीज आर ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी दैट यू एग्री बट येट यू डोंट एग्री. एक इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद सेड वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग. वो ये कहते हैं कि जैसे ही मैं किसी बात में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ या रिएक्ट करता हूँ तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ, और क्रोध में जो सेंसेशंस या वाइब्रेशंस मेरे शरीर में होती है, मैं उस समय अपनी इंडिपेंडेंस खो देता हूँ, स्वतंत्रता खो देता हूँ, खुश रहने की आदत खो देता हूँ, और मैं उस चीज़ का गुलाम बन जाता हूँ. आई बिकेम स्लेव. I become slave of this bad habit. So this is also another way to look at it, that this kind of behavior always make you unhappy. Eventually, you are slave to something bad. You are not able to come out of it. देखिए, एक हमारे बीच में एक हम कहते हैं चेंज मेकर, वो हमारे बीच में है मिगेल दास कुइया. ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आसाम में. चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस सॉल्व करते हैं, बच्चों को, चिल्ड्रन को उनके राइट्स क्या हैं वो सिखाते हैं, बताते हैं. इन्होंने 6000 बच्चों को चाइल्ड राइट्स के बारे में असम में उनको ट्रेन किया है. कम से कम 3 स्लम एरिया गुवाहाटी में 280 बच्चों को चाइल्ड लेबर्स को वहाँ से निकाला, और उनमें से 250 बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला. 30 चाइल्ड मैरिजेस को रुकवाया. सभी लोगों के साथ काम करते हैं. लेट्स वेलकम
मिगेल दास कुइया। राहें तलाशना आसान है, कोशिश उसे बरकरार रखने की होनी चाहिए। इन बच्चों के चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इन सब की निगाहों में एक ही सूरत बसती है। इन बच्चों की तकदीर न जाने इन्हें कहां ले जाती, लेकिन एक शख्स ने इनकी किस्मत बदल दी। नॉर्थ ईस्ट के इन बच्चों को जीने और नई चीजें सीखने की हिम्मत दी मिगेल दास कुइया ने। गुवाहाटी के मिगेल उन लोगों में से हैं जिनकी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी को कामयाब बनाना है। हम समझते हैं कि जो स्लम एरियाज़ है या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चे बहुत रिस्क में होते हैं, क्योंकि वो पुअर फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, सामाजिक भाव से वो लोग आइसोलेट होते हैं, तो बच्चों का राइट्स पाने में बहुत मुश्किल हो जाता है इन एरियाज़ में। करीब 5 साल पहले गुवाहाटी में शुरू हुआ मिगेल का एनजीओ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बाल शोषण, बाल विवाह और बाल अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मिगेल बेमिसाल काम कर रहे हैं। मिगेल ने अब तक बाल शोषण के पीड़ित कई बच्चों को बचाया है। अब तक 30 बाल विवाह रुकवाए और करीब 6000 बच्चों को बाल अधिकारियों की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस सफर में कई बार धमकी और कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कम वक्त में मिगेल ने जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए उन्हें ईस्ट वेस्ट सेंटर की तरफ से यूथ लीडर ऑफ द एशिया पैसिफिक एंड द अमेरिका सम्मान मिला। इसके अलावा मेंबर ऑफ चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स कमेटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। मिगेल दास जैसे लोगों की कोशिश मिसाल बनकर समाज को बुलंदियों तक पहुंचा रही है। So what kind of difficulty have you faced in this work? As an activist, क्या होता है कि you face a lot of problems, especially from duty bearers when you are fighting a case of child sexual abuse or you're fighting a case of child labor. So the most difficulty that I face is aggression on the part of people who are breaking the law actually. For example, breaking the law, yes. So why I say this is जब हम लोग child labor rescue के लिए जाते हैं, so there have been cases where actually we have been threatened so many times, that आपको मार देंगे. There was one particular case which Childline would know. वहाँ तो they came out with a gun because the guy was a police officer who had child labor. So in cases of child sexual abuse में क्या होता है? If you're trying to go and rescue someone, then of course the entire family comes and comes out against you कि ऐसा होता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो. पर those are the challenges we have to face. Any question to Miguel from you? बच्चों के साथ यौन हिंसा बहुत हो रही है, घर में भी, रिश्तेदारों द्वारा भी और स्कूल वगैरह में भी. तो उसके लिए जो है बच्चों को, अपने घर के बच्चों को तो कम से कम कैसे शिक्षा दें कि वो उससे बचे. देखिए ये विषय बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस विषय को दबाते हैं नीचे. माँ बाप भी इस इशू के ऊपर बात बच्चों से नहीं करना चाहते. मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ उस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, लड़का या लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे चुप करो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए. अगर लड़की का हुआ होगा तो बोले अगर इसको पता लग गया तो इसकी शादी नहीं होगी या कुछ होगा. तो और आप लोगों को हैरानगी होगी कि 40% केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ हैपन इन द फैमिली. ये इस तरह के केसेस बहुत होते हैं जो कि बच्चा फिर बोलता नहीं है और उसका मैनिफेस्टेशन होता है, सारी ज़िंदगी वो बच्ची की ज़िंदगी तबाह होती है. बड़ा एक पेरेंट्स इसमें, फैमिली के लोग इसमें ज़्यादा लाभ दे सकते हैं बजाय कानून के. जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, हर जगह एक ही चीज़ चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट. हर जगह हम लोग ये देख रहे हैं कि लड़कियों को कैसे हम लोग जो हो रहा है उन सब से बचाए या उनके लिए कैसे एक्शंस ले. बट सर,
ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ केसेस में लड़के सही हैं. आज हम बस में जाते हैं तो एक रिजर्वेशन है कि ये पार्ट लड़कियों के लिए कर दिया है रिजर्व. ऐसा क्यों? What happens first, to understand a social issue, you have to understand the context. Now, we're not talking about some context where there is gender equality already. Okay, it's like pushing you that for years you have been like 1,000 years behind men, and today we want to be equal. So we have to give you a push, because that 1,000 years you had already been backward, socially, politically, economically, disempowered completely. So this extra seat that you see is to push you to that. You need that push, because for thousands and thousands of years you are behind. You cannot put them suddenly together. Now today, for example, if when you get married, your husband will ask you, will you adopt my surname? Okay? You might say no itself, right? For that, you need to get to that structure, that structural equality, where you can actually talk at par with a man. My point of view is very, very contradictory to what everybody says. I say women is all powerful, more powerful than men. और उसका मैंने तो बचपन से देखा है. मैंने बचपन से देखा है अपनी माँ को. आज से मैं 50 साल 60 साल पहले की बात करता हूँ, जो कि 4 बच्चों की माँ होने के बाद 500 मीटर दूर से पानी लेके आती थी. एक हाथ में एक बाल्टी भरी हुई है, एक बगल में है, 3 कटोरे ऊपर हैं, और वो 500 मीटर से चल के आ रही है. 40-50 लोगों का खाना रोज़ बनाती है. कहाँ से कमज़ोर है औरत? लेडीज़ ने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है. आपने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है. आप में जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, आदमी में नहीं है. ये हमने मनुष्यों ने, आदमियों ने कह के आपको यकीन दिला दिया कि आप कमज़ोर हो. ये हमारी कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट द वुमेन. How will you respond to my answer? Sir, I actually agree to your answer, because when sir was saying that, I actually wanted to ask him कि how can you say कि आज हम लोग साथ में नहीं चल रहे हो, आप लोग हर जगह नहीं. इस देश ने तो हमेशा औरतों को साथ लेके चला. हाँ, ये दूसरी बात है कि जो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, गरीबी है, गांव में और में जहाँ पे वो स्थिति ख़राब है, इस तरह की एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे वो आदमी दारू पी के कुछ करके अपनी औरत को मारता है, करता है, कुछ होता है. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो एक सिचुएशन है जिसको समाज को दूसरी तरीके से एड्रेस करना चाहिए. आई वुड से दैट मैन इज सिक. उसकी सिकनेस को दूर करो. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेल्पफुल टू द चिल्ड्रन, एंड कीप कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क. If there is anything Z or me can do anything for financial help, कुछ भी चाहिए तो हमको याद करिए. Thank you very much. Thank you very much. तो मैं इस शो को ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि जब भी हम कम्बैटिव मोड में हैं और थोड़ा बहुत दूसरे एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो हम गलती कर बैठते हैं और अपने आप को पहचानने की क्षमता खो बैठते हैं. We lose control on our own self, and that is the result. We become rather slaves of our own behavior pattern. And let's try and avoid becoming slave of anything. So don't lose your right to be always happy. Thank you very much. Jai Hind.